السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ وقال في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اس تاریخی مناسبت سے اور اپنے جلوں میں طرح طرح کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہندوستان کی متحدہ پلیٹ فارم مسلمانان ہند کا اور کئی ناحیے سے پورے ہندوستان کا آج کسی مقصد کے تحت یہاں حاضر ہے اور بڑے مقصد کے تحت حاضر ہے۔ صرف مسلم پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرسنل لا کا مسئلہ ہے، اور صرف پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بھارت کی جو مہان دیش ہے، وشو میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، خاص طور پر اپنی تہذیب و ثقافت کی حیثیت سے بھی، اور اپنی سنسکرتی اور اپنی بکلمونی اور اپنی گنگا جمنی اور اسی طریقے سے اپنے بہت سارے امتیازات اور اختصاصات کے ساتھ۔ میں اس موقع سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر قیادت کر رہے اور بڑے حزم و جزم و یقین و صبر اور حکمت کے ساتھ کر رہے صدر عالی مقام محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ و طولہ کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اور آپ نے ایک آواز پر یہاں لبیک کہہ کر کے اس دیش کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کے خاطر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانیت کی خاطر آپ کشا کشا یہاں آ گئے ہیں۔ میں اہل بنگلور کا بھی بہت دل کے گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ ہمارے والنٹیئر راستے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دن ہی سے پورے طور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کی انتظامیہ بھی اور یہاں کے ہر طرح کے لوگ۔ میں آج بہت سخت بیمار پڑ گیا، اچانک گیا، مجھے تو کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ملا تھا، نرس نہیں ملی تھی، میرا موزہ اپنے ہاتھ سے نکالا، جب تھوڑا سا وہ ہوا تو اس بہنوں نے لپک کر کے اس موزے کو لیا۔ میں دھیرے دھیرے بلا رہا تھا کسی کو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آ کر کے لے لیں۔ یہ اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلم پرسنل لا بورڈ نے لی اور اس کو نبھایا ہے مختلف اوقات سے۔ اور کیوں نہیں نبھاتے؟ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے، اور آپ پورے طور پر سر سے کفن باندھ کر کے اس دیش کی خاطر نکلے تھے۔ ایمان، جس ایمان کی حفاظت کی بات کہی جا رہی ہے اور جس شریعت و اخلاق اور ایمان کی بات کہی جا رہی ہے، اس کی خاطر نکلے تھے، اور آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، اور 150 سال تک آپ نے 30 مسلح جہاد کیے تھے،
फतवा देने पर सिर्फ घर में बैठ नहीं गए थे, सिर्फ अबू तालिब रहमानी साहबा के तकरीर करके दिलों को गरमा के नहीं चले गए थे, बड़े और भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, बल्कि आपने मुसल्लह जिहाद किया था और इस देश को आजाद कराने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए और यहाँ के मानवता को उसको सही रुख पर ढालने के लिए, जहां न मस्जिद महफूज थी, न मंदिर महफूज था, न कोई और किसी तरह की इबादतगाह महफूज थी। लेकिन 150 साल बाद पता चला कि नहीं, ये सिर्फ एक जमात की, एक वर्ग की और सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी से, और मुसलमानों में भी जो बट जाते हैं, कभी कट जाते हैं, कभी कभी डिग जाते हैं कहीं, उससे भी काम नहीं बनेगा। नारा लगा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कहा 150 साल की तारीख, उसकी हकीकत में वो उसकी किसी तरीके से उसकी खिदमत नहीं करना चाहता। अगर आपको दिल में कहीं से वसवसा पैदा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी तारीख की तरफ इशारा करके नहीं, बबांगे दोहल कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे अली मियां नदवी दुनिया की एक बड़ी शख्सियत ने अपनी किताब में लिखा था, लवदाना तदहियात अहले हिंद कुल्लिहिम फी किफ़त मीज़ान व तदहियात अहले सादिक़फूर फी किफ़त मीज़ान उखरा लरहत किफ़त अहले सादिक़फूर। सारे हिंदुस्तानियों, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, उसमें जावा सुमात्रा भी था, ये लंका भी किसी न किसी हैसियत से आता था, और ये पूरा खित्ता जो मुत्तहिद अखंड भारत कहलाता था। और हमने तो जो सेंटर बनाया था वो सरहद पर बनाया था, वो अफगानिस्तान पर। इस वक्त अखंड भारत किसी को सूझ रही है, हम उसकी तारीख जानते हैं, हमने उसकी हिफाजत की थी और उसी तरीके से इस देश को देने की कोशिश की थी। लेकिन हाय, कभी आप हिंदू मुस्लिम बढ़ जा रहे हैं, कभी सिख ईसाई बढ़ जा रहे हैं, कभी मुस्लिम मुस्लिम बढ़ जा रहे हैं, कभी हिंदू वर्गों में बढ़ जा रहे हैं। ये जीने के लक्षण हरगिज नहीं है। मैं कह ये रहा था कि जब ये नारा महसूस किया कि सिर्फ कुर्बानियों के देने से और किसी एक के फिदायाना किरदार की वजह से हम नहीं आजाद हो सकते, तो उस वक्त जब ये नारा लगा था तो चंद ही दिनों के बाद आजादी आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी सफों में घुस गए थे लोग और तरह तरह के नारे लगे थे, और उन नारों को भी पूरे तौर पर हमने दबा दिया था, उसको बिल्कुल बैठा दिया था और कहा कि ये तफरीक नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। यही कुतुब मीनार की ऊंचाइयों पर कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इशारा करके कि कुतुब मीनार के इस बुलंदियों पर आकर के आसमान से कोई फरिश्ता तड़प करके उतर आए और कहे कि इसी लम्हे तुमको देश की आजादी का परवाना मिल जाएगा। जो तुमको ललचाना और दिखाना चाहता है, एक को लड़ा, दोनों को लड़ा करके किसी एक को आगे बढ़ाना चाहता है, दोनों के साथ धोखा करना चाहता है, तो मैं इस पर कभी भी राजी नहीं हो सकता। ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, हालात के रुख को नहीं बल्कि उसके अंजाम की तरफ, जिस तेजी से हलाकत की तरफ बढ़ रहे हैं हम, हमारा मुल्क बढ़ रहा है और हमारी संस्कृति खराब हो रही है, और खूनों में जो एक ही रग हमारे ईमान और अकीदे के मुताबिक दौड़ रहा। सिर्फ पर्सनल लॉ का मसला नहीं है, हमको ईमान की सबसे बड़ी खबर लेनी है, अकीदे की सबसे बड़ी खबर लेनी है, और खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इसको पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो वक्त का इस्कंदर आजम था, अगरचे वो अपने पुरखों को इस्कंदर आजम कहता था, उसने कहा कि इस तरह आकर के और यकीन दिला दे फरिश्ता भी कि आजादी का परवाना तुमको मिलने वाला है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की तफरीक हो जाएगी, इस बुनियाद पर देंगे। तो कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इस तरह की तफरीक को नहीं बर्दाश्त कर सकता। और कैबिनेट प्लान में जाने से पहले गांधी जी से सबसे पहले उन्होंने ये इकरार करा लिया था, ये साफ साफ कहा था कि मुझे लगता है कि आज की बैठक में किसी तरह से कुछ हो ना जाए। बड़े मुहिम को सर करने जा रहे थे, लेकिन पंडित जी ने, गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश से गुजर करके इस देश का बंटवारा होगा या हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी तरह का नारा होगा। तो उस यकीन दहानी के बाद गए थे, लेकिन शाम को ये बूढ़ा अज़्म जवान का कभी भी उसकी जिंदगी पर पलमुद्रगी नहीं देखी गई। कांग्रेस की, कांग्रेस नहीं कहिए हिंदुस्तानियों की, कांग्रेस कहने से इस वक्त बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। उस वक्त हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली जो कांग्रेस थी, उसमें
वो पूरे तौर पर इंसान कठिन हालात में उसकी सदारत कबूल की थी। कठिन हालात में वही सदारत का बोझ उठाते थे और जेलों में किस तरीके से जाते थे। उस वक्त उसके चेहरे पर कभी पजमुर्दगी नहीं हुई। आप ईमान के रखवाले बने हैं, मुस्लिम पर्सन अल्लाह के दीवाने बने हैं। आप पूछिए किस तरीके से उसकी वैसी वफादार बीवियां आज नहीं मिल सकती। और तलाक के और निकाह के जो हजार मसले खड़े हो रहे हैं, ये जवानों अपने असलाफ से सीखने की जरूरत है। कुरान और हदीस तो है ही, और उस पर मरना है, उस पर जीना है, लेकिन उस पर अमल करने का। अबुल कलाम आजाद को देखो कि इस देश की खातिर वो परवाना मिला हुआ कि जेल से इयादत कर सकते हैं, ये नहीं किया था। यही पैगाम हमारे उलमा दे रहे थे आपको। यहाँ सफों में किसी तरीके से कजी नहीं है इंशाअल्लाह। यहाँ किसी तरीके से दिलों में कोई रैब व शक और तसल्जुल नहीं है। यहाँ सपात कदमी है और पूरे जोश के साथ है, पूरे होश और हिकमत के साथ है। उसको दिलों में उतारने की जरूरत है। वो मौलाना आजाद उस दिन, जिस दिन बंटवारे पर गांधी जी ने और सबों ने साथ कर दिया, शाम को भूखा प्यासा ये बूढ़ा दिन भर में टक्कर लेता हुआ अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल करके और नोके पलट बकौल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो खुद एक बड़ा दिमाग था, कहा कि वो जहां नुक्ता रख देते थे कि ये जुमला इस तरीके से नहीं, ये टोन इस तरह से नहीं, किसी की मजाल नहीं होती थी। सब कहते थे कि यही दिल की बात है। उस दिन वो सीधे गांधी जी के पास गया। उस दिन सबसे ज्यादा मुरझाया हुआ, सबसे ज्यादा बुझा हुआ, और सबसे ज्यादा लगता था कि उसके सीने को, इस भारत के धरती को नहीं बांटा गया है, उसके सीने को शक कर दिया गया। ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कौन जाएगा? मैं अजीजों बुजुर्गों, बातें हमारे बहुत से बुजुर्ग बाकी हैं, वो कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि पर्सन अल्लाह की हिफाजत, मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत का मसला सिर्फ नहीं है, और अगर है तो वो हिफाजत अव्वल और आखिर आपको करनी है। करेंगे, बोले इंशाअल्लाह, आप बोले इंशाअल्लाह। आप करेंगे तो जरा जिगर थाम के बैठो, मेरी एक बारी आई है। वो जानते हैं क्या है? फजर की नमाज में काश के हमारी मस्जिदों के लिए रो रहे हैं। मैंने उलमा को देखा, बात रुधी हुई आवाज में कह रहे हैं, और रुधी हुई आवाज में, लेकिन मस्जिद मरसिया खां है कि नमाज ही न रहे। लोगों, ये तलाक के फितने जो आए, मैं 6 साल तक दारुल इफ्ता में भी रहा हूं, जामिया सलफिया में, और उसके बाद भी फतवे कमेटी से खुसूसी ताल्लुक है। मैं जानता हूं कि किस तरीके के फतवे आते हैं। वल्लाह मैं 24 स्टेट में खासतौर पर जमीयत के मामले में घूमता हूं, लेकिन मैंने कभी कभी भरी मजलिस में उलमा से पूछा कि क्या अपनी बहन का हक दिया है? नहीं दिया, अदा किया गया है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूबों में, दिल्ली के चंद घराने हैं, उनको मैं जानता हूं। ये जिक्र करने का नहीं है, इसकी हिफाजत की मुस्लिम पर्सनल लॉ और उससे पहले ईमानियात की, अकायद की, जिसमें हम इस कदर लापरवाह हुए हैं कि एक किसी गैर मुस्लिम भाई को देखते हैं कि वो भी काला बाजारी कर रहा है, वो भी चाहे जहेज निकाह और तलाक और रस्म रवाज में फंसा हुआ है। अब आपके नबी ने कहा था फलैसा मिन्नी, एक जगह और कहा था बाजार के मासले में मन गशना फलैसा मिन्ना। कहां कहा था? ये तो सीधे आपके ईमान पर अटैक है, ये तो सीधे आपके अंदर से दहल जाने वाली बात है। वैसा बनिए जब वो जलजले जिनसे शहनशाहों के दरबारों में थे, कैसर को साफ साफ कहना पड़ा था, और आदा अदुल मुस्लिमीन, सबसे बड़े दुश्मन को उस वक्त अबू सुफियान थे, उनको कहना पड़ा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और क्या ऐसा होता है कोई पलट जाता है, दिन से डिग जाता है? कहा कि सबसे कमजोर हैं, माली एतबार से कमजोर हैं, नेगरू स्लेव हैं, लेकिन वो क्या है? वह बदलते नहीं है। वह इन हुर्रिक़्ता व इन कुतिलता। और उसके बाद साद किया था उस नसरानी ने जिसके दीन के बकाया दीन की खूबियां मौजूद थी तो इंजील की, उसने कहा वकज़ालिकल ईमान व इज़ा वक़अ फ़िल क़ल्ब। पर ये बुखारी शरीफ। मैं बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि आपका जोश जुनून और आपका हौसला ये एक सेकंड के लिए भी पस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन होश और हिकमत जो आपका तुर्रे इम्तियाज था, बड़े बड़े चीजें आई,
ہم نے دیکھا تھا اللہ کے نبی کہنے پر مجبور ہوئے تھے کأنہ مثل حرب، دیکھو یہ لگتا ہے کہ آگ لگا دے گا، وہاں پر آپ نے کس طرح سے مظلوم تھا، کیسا تھا، آپ جذباتیت کے شکار نہ ہو، قوم آپ کی حکمت و دانائی اور آپ کے خیر امت، وسط امت، بہترین امت، انسانیت کے لیے زندہ رہنے والی، پیدا کی جانے والی امت کی اگر آپ کے لیے سب سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے، نبی کی طرف سے موجود ہے، تو اس پر مختلف ہیجانی کیفیتیں پیدا کر کے اور مختلف ذریعے سے اس کو لانا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور نہیں ہوتا ہے تو دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں اور داعش پیدا کیا جاتا ہے، اور عالمی سطح پر جب کچھ نہیں ملتا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خود حملہ کر کے اور سارے عالم اسلام کو، ساری انسانیت کو تہو نشر کرنے کی یہ سازش کی جاتی ہے۔ اس کو بھی آپ کو ہر قدم پر بہت قائدین سے جٹے رہیں گے، انشاءاللہ ان سب جھنجھٹوں میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ رب العزت الجلال بہت سی چیزیں کہنی تھی، اور آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں مٹنا ہوتا تو دار ارقم میں مل گئے ہوتے، جو سب سے ننگی تلوار اور سب سے اونچی لپکتی ہوئی تلوار اور سب سے قوی تلوار مکے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اٹھی تھی، نہیں مٹی۔ مٹنا ہوتا تو بدر میں مٹ چکے ہوتے، حنین کے میں شکار ہو چکے ہوتے، احد میں کس طریقے سے پاؤں کھڑ رہے تھے وہاں ہم چلے گئے ہوتے، ہتین میں ہم ہو گئے ہوتے، اور تبوک میں چلے گئے ہوتے۔ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن مومن اصلها ثابت وفرعها في السماء کی سما پیش کرتا ہے۔ میں نے بہت سما خراشی کر دی، میں آپ سے اپنی ذات سے اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اسی کے قوت، اسی کی عزت اور غلبے پر اور اپنی حکمت و تدبیر پر اور اپنے ملک اور اس کی سنسکرتی اور اکثریت آج بھی بھاری تعداد میں جو نہیں چاہتی اس زمین میں کسی طریقے کے، سب کا پرسنل اللہ بہت محبوب ہے اس کو۔ کاش کے بہت سارے لوگوں کے زندگی میں ایسا آیا تھا، ایک دور آیا تھا کہ ایک اسی طرح کا مسئلہ پرسنل اللہ اسی آس پاس بنا تھا، وہ شعبان و کیس والے میں کہہ دیا تھا اس وقت حکمران نے کہ ہم اس کو گرچہ عدالت نے کیا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے حالات کی، لیکن ہمارے ملک کی جو سنسکرتی ہے اور جو آزادی دیتی ہے اس کو ملغا قرار دیا تھا۔ اور سب سے بڑا فلسفہ انسانیت، جو کرسی مل جائے تو ادنا کھوٹ بھی حکومتوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ گھر کا مالک ہی جب ڈواڈول ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا۔ اور شکریہ ہے آپ تمام لوگوں کا، اور میں کیا شکریہ ادا کروں، آپ سب مل کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ادو شناش کے بخدمت بداشت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔